preparing for media entrance exam for the UG courses and you are confused because there are multiple exams I'm sure that you're giving, be it CUET media domain or you are giving it for certain BA in journalism and mass communication. There's English and GT. Also there are colleges like Symbiosis. Within 10 to 15 days they will have their set exam. Then coming to Xavier's, Jai Hind, there are colleges which are offering media degree and are in the top 10 list. All of them are taking an entrance exam. In this video, I'm going to give you some tips, tricks, books and website. Using that, you can self-prepare for these entrance exams simultaneously. So guys, make sure that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, especially media students. So make sure that you subscribe. Let's start with the syllabus because most of the students are confused कि syllabus exactly क्या है, marks division कैसे है. I'm going to take an example of Symbiosis entrance test, Xavier's entrance test, Jai Hind College common entrance exam, and I'll tell you exactly किस तरीके से आप common draw कर सकते हो. Also, I'll give you an example of CUET media domain at the same time when you're preparing for GT, how it is common in all the other entrance exam as well. Starting with SET, Symbiosis entrance test, उसका syllabus जो है, as you can see on my screen, total 60 marks का है. Then you have a bifurcation of 16 marks general English, 16 quants, 16 general awareness and 12 marks is for LRVR. Now when you talk about this paper, CBT mode में है, center पे जाके देना है, there is no negative marking. And moving on to Xavier's, अगर आप ये syllabus देखोगे तो you will see the common thing is English 20% and I will also tell you JHC का as well, which is Jai Hind College entrance exam 25%. English, so English आप देख सकते हो कि 20 to 25% सभी में common है. That is a common thing that you have to prepare. Then comes your LRVR, which is your logical reasoning and visual reasoning, जिसमें थोड़े से quants भी आ जाते हैं, which is common in your CUET general test as well. तो अगर हम parallelly देखें तो LRVR के लिए आपको सभी पेपर में प्रिपेयर करना है. Even if you are giving CUET general test जो कि mandatory है for media courses, right? तो उसमें भी LRVR आपका आ जाता है. Then comes your general knowledge. Now general awareness 16% से लेके 20 current affairs जो कि जय हिंद कॉलेज के सिलेबस में आप देखोगे 25% है. So I'll just run through. XCT पहले कर लेते हैं. English LRVR 20%, media aptitude 20%, data interpretation and eco. इसमें बच्चे बहुत confuse होते हैं. Guys, let me tell you, it is as good as eco में break even जैसे questions आते हैं जो कि economical questions है, RBI से related इस तरीके के. So it's not an heavy maths. When you talk about data interpretation, again it is LRVR का ही subject. पाई चार्ट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, इस तरीके के डेटा एनालिसिस आपको करने होते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू जीके जो कि कॉमन है 20 to 30% इन ऑल द पेपर्स. जैसे कि आप जय हिंद का सिलेबस देखोगे, इसमें अलग क्या है इज मैथ्स, विच इज स्टिल 10th स्टैंडर्ड बोला गया है. और इन्होंने यहाँ पे आपको मतलब अगर आप उनका सिलेबस इन डिटेल देखोगे, मैथ्स का थोड़ा सा हैवी है जो कि 25% वो पूछ रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, जिसमें ज्योमेट्री आ रहा है, एल्जेब्रा आ रहा है. तो उन्होंने वो थोड़ा सा हैवी एंड में रख रखा है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो जो अनकॉमन चीज़ है ना, वो आपका जिस दिन वो एग्जाम होगा उसके एक हफ्ते पहले भी करोगे तो हो जाएगा. तो अगर आप देखने जाओगे सिलेबस में ओवरऑल इंग्लिश, LRVR एंड करंट अफेयर्स ये कॉमन है. जिस तरीके से आप अगर CUET दे रहे हो तो वहाँ पे अगर आप GT कर रहे हो, जनरल टेस्ट कर रहे हो, तो आपका ऑलमोस्ट ये जो मीडिया एंट्रेंस एग्जाम है वो कवर हो जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आप प्रिपेयर कैसे करोगे. इंग्लिश के लिए आपके पास कोई भी इंग्लिश MCQs पे बुक है या रेन एंड मार्टिन की भी बुक है जो आपने 12th में यूज किया होगा, बट द ओनली प्रॉब्लम इज उसमें आपको MCQ नहीं मिलेगा. अगर MCQ फॉर्मेट में आपको इंग्लिश पैराफ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये टॉपिक कवर करते हुए कोई भी बुक मिल जाती है, कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, गो अहेड विद दैट बुक. आपका इंग्लिश जो है वो अच्छा खासा वेटेज रखता है इन ऑल द एग्जाम. अब इंग्लिश मैंने क्यों किरण पब्लिकेशन की बोली, द रीजन इज दे आर गिविंग यू इंग्लिश डोमेन की. इंग्लिश डोमेन एक पूरा अलग पेपर है इन CUET. एज यू नो लैंग्वेज पेपर आपको देना होता है. तो अगर आप CUET इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो तो ये तीनों एग्जाम का आपका इंग्लिश का जो है वो पोर्शन खत्म हो गया. लाइक यू आर ऑलरेडी डन विद इट. देन कम्स योर LRVR. नाउ
LRVR के लिए देयर आर लॉट ऑफ बुक्स दैट यू कैन बाय ऑनलाइन। अभी आपको देखना है कि कौन से पार्ट्स कवर होते हैं। अगर आप GT में देखोगे, जो कि CUET का जनरल टेस्ट है, उसमें ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऐसे जो कॉमन टॉपिक्स है, सीक्वेंसिंग हो गया, इसमें से 2-2 क्वेश्चंस हर टॉपिक पे आते हैं। तो LRVR इज नॉट लाइक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आने वाला है आपको, इट्स सेम फॉर ऑल द पेपर्स। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज ने अपना डिटेल में सिलेबस दिया है, उसी टॉपिक को आपको एक्स्ट्रा करना है, बाकी रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम। Now talking about सबसे डिफिकल्ट सवाल होता है मीडिया के बच्चों का इज रिलेटेड टू GK एंड मीडिया एप्टीट्यूड। नाउ जनरल टेस्ट जो है और करंट अफेयर्स है आपका, गैस करंट अफेयर्स के लिए मलयालम मनोरमा जैसी बुक आप खरीद सकते हो, जो कि 6 महीने का आपका करंट अफेयर्स कवर करती है। और रही GK की बात, आप ऑनलाइन भी बहुत सारे मॉक्स बोलते हैं ना, MCQs सॉल्व करके, टेस्ट बुक करके वेबसाइट है, वहाँ जाके अगर आप सॉल्व करोगे तो भी रेगुलर प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा। तो जनरल टेस्ट के लिए भी बुक्स अवेलेबल है, जिसमें आपको आपका जो स्टैटिक GK है वो कवर हो जाता है। दैट इज सफिशिएंट। हर साल की आपको लेटेस्ट ईयर की बुक लेनी है, सो दैट करंट अफेयर्स और आपका स्टैटिक GK दोनों कवर हो जाए। अब बात करते हैं मीडिया एप्टीट्यूड की, जो कि बाकी सारे कोर्सेज से थोड़ा अलग होता है। अब मीडिया एप्टीट्यूड में आप क्या करोगे, CUET का जो पूरा सिलेबस है उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड द कंप्लीट सिलेबस। ऑल्सो उन्होंने लास्ट ईयर एक नोट्स रिलीज किया था, वो भी PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। अगर आप उतना भी मीडिया एप्टीट्यूड करोगे ना, जिसमें आ जाता है एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन, जर्नलिज्म, प्रिंट जर्नलिज्म, न्यू मीडिया, अगर ये 5 से 6 टॉपिक, फिल्म अप्रिसिएशन, फिल्म स्टडीज, ये सारी अगर आपने कवर कर ली तो आपका जो है मीडिया डोमेन कवर हो जाता है। नाउ SET में कुछ मीडिया एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ जाएंगे, XCT जो कि जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट है उसमें आता है, एंड लास्टली CUET मीडिया डोमेन, जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्टक है कि मैम मीडिया डोमेन पे कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नाउ गाइस, मीडिया डोमेन के लिए प्रिपेयर करना एक ही सॉल्यूशन है। आई विल रेकमेंड अ बुक विच इज मीडिया इन इंडिया करके है, बट वो पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम जाएगा, लाइक समझने के लिए। दैट्स व्हाई व्हाट आई कैन डू इज, जो भी PDF फाइल मेरे पास अवेलेबल है, आई विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो वी माइट बी सून कंडक्टिंग लेक्चर ऑनलाइन ऑन एक्सप्लेनिंग यू द मीडिया एप्टीट्यूड, फिर आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो। द रीजन इज मीडिया एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि ये पर्टिकुलर बुक किसने लिखी, हु इज द फादर ऑफ जर्नलिज्म, विच वॉज द पेपर विच वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ गए तो उसमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, आपको जो है वो पूरा याद रखना है। लाइक व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया, विच वॉज द एरा ऑफ टेलीविजन इन इंडिया। तो इस तरीके के वो जब क्वेश्चंस पूछेंगे, सो व्हाट हैपेंस इज मीडिया इज अ वाइड अम्ब्रेला। लाइक एडवर्टाइजिंग की आप बात कर लो तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर लोगो, वो ऐसे लोगो डालेंगे और आपको पूछेंगे ये किस कंपनी का लोगो है, जैसे ऑडी का लोगो दे दिया, मर्सिडीज बेंज का लोगो दे दिया, कई बार मैकडॉनल्ड्स का लोगो देके भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समटाइम हु इज द कंपोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूजिक और सॉन्ग, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, इस तरीके के मीडिया एप्टीट्यूड में आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हाट आई कैन हेल्प यू विद इज गिव यू द सिलेबस। नाउ इफ यू विल आस्क मी द बुक, स्पेसिफिक बुक, तो अरिहांत पब्लिकेशन की एक बुक है जो जेवियर्स एंट्रेंस के लिए काफ़ी पॉपुलर है, आप उसको रेफर कर सकते हो। IIMC के लिए भी देयर आर बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा फॉर UG एग्जामिनेशन, बट फॉर मीडिया एप्टीट्यूड वी कैन डेफिनेटली रेफर टू दैट, एंड आई जस्ट गिव यू द नेम ऑफ दोज बुक्स। ऑल्सो आई गिव यू द बुक्स फॉर इंग्लिश का, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया, आई गिव यू द लिस्ट ऑफ द बुक्स एज वेल, सो दैट यू आर सॉर्टेड। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिस्ट मिल जाएगी कौन सी बुक कौन से सब्जेक्ट के लिए है। नाउ लास्टली लेट मी गिव यू द टिप फॉर 15 डेज। नाउ इन 15 डेज आपको, अभी आप पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते, तो जितना हो सकता है आप MCQ सॉल्व करो। अगर आप बुक अभी भी ऑर्डर करोगे तो 2 दिन लगेगा आने के लिए, तो ऑनलाइन आई गिव यू सम वेबसाइट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टेक्स्ट बुक है, notopedia.com है, यहाँ से जाके आप चीज़ें फ्री में रिसोर्सेज लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। मॉक टेस्ट जितना सॉल्व करोगे दैट गोना बी योर सेवियर। सो लास्ट मिनट है, हर टॉपिक के मॉक टेस्ट सॉल्व करो, लाइक आधे आधे घंटे बोलते हैं ना, अगर आज LRVR लिया है तो 6 टॉपिक आधे आधे घंटे उनका सॉल्व कर लो। दैट इज हाउ यू कैन प्लान। इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज स्पीड बहुत मैटर करेगी आपकी एग्जाम हॉल में, बिकॉज सारे ही MCQs हैं। तो जितना प्रैक्टिस करोगे इन दिस 15 डेज, टॉपिक वाइज आप MCQ सॉल्व करो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड इन 15 डेज अच्छे से हो जाएगा, बिकॉज 15 डेज में जो भी आप करोगे ना वो आपके माइंड में फ्रेश रहेगा, एंड एज सुन एज योर एग्जाम्स आर देयर यू कैन जस्ट नो कि भाई ये फेमिलियर है और वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। सो MCQ
MCQ करना इज द ओनली थिंग राइट नाउ दैट यू हैव. टॉपिक को समझ लो, अगर आपके पास टाइम है, टॉपिक समझ रहा है, ईजी को ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जो आपके लिए डिफिकल्ट है वो थोड़ा सा आप करके उसको साइड में रख सकते हो, बट ट्राई करना कि 60-70% जो आपको ईजी पड़ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके खुद के लिए सॉर्ट कर लो. I hope guys the video was informative. Share it with your friends who are appearing for the media entrance exam. It will definitely help them to sort out things. अभी भी 15 दिन से लेके 2 महीने तक का टाइम है for the exam, so you can still prepare, plan your calendar. I will definitely come up with a video जहाँ पे आप कैलेंडर कैसे बनाओगे उस पर भी मैं आपको चीज़ें बता दूंगी कि भाई 15 दिन के लिए और 2 महीने का कैलेंडर कैसे बनाना है. Right now I was more focused in this video to tell you these are the common topics और किस तरीके से आप commonly prepare करो. अलग अलग मत देखो इन एग्जाम्स को, कॉमन तरीके से देखो, सो दैट एक टॉपिक प्रिपेयर कर लो, भाई एग्जाम तो देना ही है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एग्जाम का नाम अलग है, आपके टॉपिक सेम है. सो दैट इज द मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव यू वाया दिस वीडियो. आई होप गाइस द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन मीडिया वेंटर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.